Hello students, welcome to the next lecture on the linear programming problem. Today I will explain you what is the principle of the two-phase methods. Two-phase method की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे ये काम करेगा, कितने phases हैं और कैसे हम इसको handle करेंगे. That all we will discuss very short in this video. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now अभी तक हम क्या देख चुके हैं? We have already learned how you can solve the simplex methods, how you can solve the LPP by using the simplex method, and our target is to get the optimal solution. ये लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी, एंड यू कैन सी व्हाई सिंप्लेक्स मेथड नीडेड, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड एंड द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. तो आज का लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ द टू फेस मेथड. फाइन, चलिए. What is the simplex method? So we have discretized the simplex method in the two category. One, when all the constraints are of less than equal to form, then you can easily solve with the help of the simplex method. That the same lecture जो हमने इस एग्जांपल के साथ समझा था. फाइन, लेकिन अगर आपके पास कोई भी constraints, at least one constraint is greater than or equal to form, then we must use the artificial variables. फाइन, तब हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करना पड़ता है सिंप्लेक्स मेथड लगाने से पहले. और इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को हैंडल कौन करता है? इधर द टू फेस मेथड और द बिग एन मेथड्स. फाइन, फॉर मोर डिटेल अबाउट द टू फेस मेथड यू मस्ट वॉच अबाउट माय लास्ट लेक्चर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन दी एलपीपी. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, तो सबसे पहले अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, so how you can convert into the standard form? So I can use minus si अगर ये ith constant है आपके पास. Fine. Now can you say, can you start the simplex method by using these constraints? Fine. Can you start the simplex method? वो कैसे decide करते हो आप? How you can decide that? If you getting the initial basic feasible solution. ऐसे तो था ना आपके पास. इनिशियल बेसिक का मतलब क्या होगा? इफ आई सब्स्टिट्यूट ऑल द एक्साइज आर माई जीरो इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स, कितनी वैल्यू आ गई एस आई की? एस आई विल बी माइनस ऑफ बी आई विच इज नॉट ग्रेटर देन जीरो. वाई? बिकॉज बी इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, बट हमें क्या चाहिए? एस आईज आर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. इसका मतलब यू कैन नेवर स्टार्ट द सिंप्लेक्स मेथड. फाइन, तो इसके लिए क्या करना होगा? यू हैव टू, बिकॉज इट कंट्राडिक्शन माई गिवन स्टेटमेंट, तो इसको हैंडल करने के लिए ही हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करना पड़ा था. फाइन, तो इसीलिए मैंने डिटेल लेक्चर आपको 10 मिनट का प्रीवियस में अपलोड करा हुआ है. नाउ तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड कर दिया. क्लियर? नाउ तो जैसे हमने ऐड करा, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या हो जाएगा? जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आप ऐड करोगे, यू कैन ऐड माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन. अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, if your problem is a minimizations, then whatsoever the given objective functions, then you have to add plus a1 plus a2 plus a3 and so fine. तो ऐसे ही मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, whenever you have the constraints greater than equal to form, then you have to add minus. जैसे ये greater than का था तो हमने क्या ऐड करा? minus si plus ai. अगर constant equality का है, then you have to add only ai's, and if it is less than sign you have to add the plus ai sign. Fine. For more details, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, for more detail you must watch about my this lecture. 10 to 12 minutes का lecture है, various example के साथ मैंने already explain किया हुआ है. Now, like the one example is, if you have the LPP, इस problem is my maximizations subjected to the constraint which is of greater than sign. तो आपने क्या कर दिया इसको? S1 and A1 पहले में, and second is also greater than equal to, I can add minus S2 plus A2 while writing into the standard form. Since my problem is a maximization, so I have to add minus A1 minus A2 because दो artificial variable हमने add करे and all the variables are my positive. तो टू फेस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? फाइन, बट हमेशा याद रखो बच्चों, मेरी एडवाइस है, अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, देन लाइक ऑफ दिस you can convert into the maximizations by converting it by multiply with the negative sign. Fine. तो जिससे क्या होगा कि आपके सारे रूल्स, सारे मेथड, सारे स्टेप्स सेम रह जाएंगे. Now why we call as the two phase method? पहली बात, टू फेस मेथड इसीलिए है बिकॉज इस प्रॉब्लम को, गिवन एलपीपी को हम
टू फेसिस में सॉल्व करते हैं। फेस नंबर 1 को पर्पस होता है टू चेक द फिजिबिलिटी और फेस नंबर 2 चेक द ऑप्टिमलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी आपके पास एलपीपी है, जैसे ये है, इसमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को छोड़ दो, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल लीजिए, बाकी सारी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करो, फाइन। एंड अगर तो ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रिमूव हो गए आपके फ्रॉम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, fine, if all the artificial variable removed from the optimal table, then you can say the given LPP has feasible solution. और अगर कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी रह गया, then we can say the given LPP has infeasible solutions, और फिर आप ऑप्टिमल नहीं निकाल सकते। और इसके बाद चेक द ऑप्टिमलिटी में क्या करेंगे, जो आपके पास ओरिजिनल एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ओरिजिनल एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको लेकर सॉल्व करेंगे एंड चेक विल बी वेदर दे आर मैक्सिमम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, वेदर ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। जैसे फॉर एग्जांपल हियर, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, चाहे आप इसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर लो, तो इसका मैक्सिमाइजेशन क्या लिख सकते हो आप, फाइन, मैक्सिमाइजेशन विल बी माइनस x1 माइनस x2, फाइन। तो इसका कांस्टेंट में बनाओ, आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाते हैं, so minus s1 minus s1 plus a1 is 4, second constant x1 plus 7x2 minus s2 plus a2 is 7। जितने भी आपके xi's हैं, जितने भी आपके si's हैं और जितने भी आपके ai's हैं, all are my positive। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर तो आपने मैक्सिमाइजेशन लिखा है तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2 माइनस a1 माइनस a2। और अगर आपने प्रॉब्लम का मिनिमाइजेशन ही रहने दिया तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन, फिर उसमें प्लस a1 प्लस a2 आ जाएगा। चॉइस आपकी है, आप किसी भी तरह से इसे लिख सकते हो। अब इस एलपीपी को दो फेसिस में डिवाइड करेंगे, फेस 1 फेस 2, फाइन। फेस 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का a1 एंड a2 वाले फेस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ओनली a1 एंड a2, बाकी सारा कांस्टेंट सेम। और फेस 2 के अंदर a1 a2 नहीं लिखेंगे, बाकी जो रह गया आपका दैट इज माइनस x1 माइनस x2। तो बिकॉज द एलपीपी इज डिवाइडेड इनटू द टू फेसेस, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज टू फेस एलपीपी, फाइन। हम इस एलपीपी फेस 1 को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, फेज 2 को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, वी कैन सॉल्व द एलपीपी। अगेन यहाँ इक्वालिटी है आपके पास, तो पहले कांस्टेंट को लिख लेते हैं, माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3। तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो जाएगा, a1, कोई स्लैक नहीं आएगा। सेकेंड इज 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस a2 विच इज इक्वल टू 1। सारे के सारे xi's, सारे के सारे ai's आर माई ग्रेटर देन 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन। जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो ऐसा रहेगा, और कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने लगाए इसके अंदर, टू वेरिएबल्स, तो माइनस a1 माइनस a2, फाइन। तो आप फेस 1 इतना आपका फेस 2 के लिए होगा, और ये अकेला आपके पास फेस 1 के लिए बन जाएगा, फाइन। तो इसका मैं फिर बता रहा हूं, फेस 1 का टारगेट है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड देन हमारा टारगेट क्या होगा फेस 1 में, a1 जितने भी ai's हैं वो आपके ऑप्टिमल टेबल में नहीं होना चाहिए फाइनल आंसर में, फाइन। अगर तो इसमें नहीं है देन वी कैन अडॉप्ट दी फेज 2, अदरवाइज वी विल कॉल एज इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो इनके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दैट वी विल सी इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, practice more videos, practice more questions from my this playlist, share this video with your friends. Happy learning students, thanks for the watching.